Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in your English class. I am your English teacher Rabia Batul. Dear students, in the last lecture we have started the very first chapter, unit number 1, responsibilities of youth. The first chapter of your new English coursebook, responsibilities of youth. Yes students, I have told you in the previous lecture that this is a convocation address delivered by Quaid-e-Azam at Dhaka University Convocation on 24th March 1948. These are the few excerpts from that convocation address. So we have started in the previous lecture. Today we will continue from page number 3. Yes students, in the previous lecture I have told you that Quaid-e-Azam has advised a lot to the youth, and Quaid-e-Azam has emphasized much on the importance of youth. Quaid-e-Azam had said that in his convocation, Quaid-e-Azam had said that it is not easy that after achieving that freedom and after getting a separate homeland, it is not easy to run a government. मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको ये क्लियर किया था, जहाँ पे हमने स्टॉप भी किया था, कि कायदे-ए-आज़म ने इस चीज़ का तो रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है कि हमने फ्रीडम, लिबर्टी, सेपरेट होमलैंड हासिल कर लिया है, बट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन ऑल ऑफ अस टू रन द गवर्नमेंट, एंड इट इज़ द मेन टास्क. It is a very important task that how we are there to run our state, to run our government. Yes students, we have to continue from page number 3. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome. जी, कायदे-ए-आज़म बयान कर रहे हैं कि मैं आपको कुछ ऐसी मुश्किलात के बारे में बताता हूँ जिन पर हमने ओवरकम, जिनको हमने काबू पा लिया है, and of the dangers that still lie ahead. लेकिन उन मुश्किलात पर काबू पाने के बाद, सेपरेट होमलैंड, सेपरेट स्टेट हासिल करने के बाद अभी भी हमारे सामने और बहुत से ख़तरात मौजूद हैं. We are still facing a lot of hurdles, dangers, problems. We have to face all those problems after achieving that separate homeland. It is not the fact that we have got that separate homeland, now we are free and we have overcome all the problems. No students, Quaid-e-Azam is saying that there are still different dangers in front of us. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. जी बेटा, पाकिस्तान के क़याम, establishment of Pakistan, पाकिस्तान के क़याम को prevent to stop, रोकना, रोकने की जो ख्वाहिश थी हमारे एनिमीज़ की, हमारे दुश्मन, वो लोग जो पाकिस्तान वजूद में नहीं लाना चाहते थे, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान वजूद में ना आए. थॉटेड मीन्स दे आर डिफीटेड, डिसअपॉइंटेड, वो अपने इन इरादों में नाकाम हो गए. Our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Yes, now they are disappointed in their wrong means. अब उनके इरादे पूरे नहीं हो सके, पाकिस्तान वजूद में आ गया. पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद अब हमारे दुश्मनों की क्या कोशिश है कि उन्होंने अपनी तवज्जो किस तरफ डाइवर्ट कर दी. फाइंडिंग वेज, ऐसे तरीके इख्तियार करें, तलाश करें, एंड मीन्स, और ऐसे रास्ते ढूंढें टू वीकन एंड डिस्ट्रॉयर्स, कि जिससे वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को कमज़ोर बना सकें और इन्हें नुकसान पहुंचा सकें. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. Yes students, I have written the vocabulary word over here. It is Holocaust. What does it mean? Have you heard this term? Holocaust, extensive destruction. बेटा जब बहुत वसी पैमाने पर तबाही फैलती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन, होलोकॉस्ट. जी बेटा, मैंने आपको ये बयान किया है कि हमारे दुश्मन इन इरादों में कामयाब नहीं हो सके कि पाकिस्तान के क़याम को वो रोक सकें. इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने
अब मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए. दे हैव डाइवर्टेड देयर अटेंशन टूवर्ड डिफरेंट मीन्स एंड वेज टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय आवर नेशन एंड स्टेट. सो व्हाट दे हैव डन कि अभी इस नई रियासत को बमुश्किल से ही वजूद में आए कुछ अरसा हुआ था. When came the पंजाब एंड दिल्ली होलोकॉस्ट, कि पंजाब में उन्होंने सेपरेशन, पंजाब की सेपरेशन, पंजाब को सेपरेट करने की बात शुरू हो गई. और दिल्ली में जो इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद और खून रेजी और इतना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. जी बेटा, do you have any idea about the word butchered? Yes, the term butchered means kill indiscriminately. What does the term butchered mean? Kill indiscriminately. Yes students, जब आपके पास आपने ये देखा कि दिल्ली और पंजाब में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस और ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद क्या किया उन्होंने, हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चों को बेरहमी से कत्ल करना शुरू कर दिया. एंड मिलियंस वर अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, और लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया गया, उनके घरों को तोड़ डाला, उनके घरों को ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादातर की आबादी कुछ ही हफ्तों में पंजाब की तरफ मूव हो गई, ट्रांसफ़र हो गई. उन्होंने हरकत करके वो पंजाब की तरफ आ गए. द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज़. जी बेटा, डेफिनेटली अब ये जो इतनी बड़ी तादाद में ये जो रिफ्यूजीज़, ये जो पनाह गज़ीन हैं, ये जो लोग वहाँ से मूव करके आए हैं बेटा, इनको वहाँ पे उनकी केयर भी करनी है, उनको वहाँ पे आबाद भी करना है. तो इस वजह से ये जो अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मत जो पनाह गज़ीन थे, इनकी देखभाल का काम और इनकी दोबारा से आबादकारी का काम, ये सब जिम्मेदारी इस नई रियासत पर आ गई. स्ट्रिकन इन बॉडी एंड इन सोल, और वो लोग जो कि स्ट्रिकन, यस स्टूडेंट्स, मिजरेबल, स्ट्रिकन मिजरेबल, यानी वो लोग जो कि शिकस्ता हाल थे, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मिजरेबल पीपल थे, स्ट्रिकन पीपल थे, बर्बाद हो चुके थे. सोल यानी रूहानी तौर पे भी, एंड बॉडी यानी फिज़िकली, जिस्मानी और रूहानी दोनों लिहाज से अब ये लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे. प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली जब इतनी बड़ी अमाउंट में, इतनी बड़ी नंबर पे जब लोग मूव करके यहाँ पे आ गए, तो इन्होंने इस नई रियासत और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पेश किए. विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी अ वेल एस्टैब्लिश स्टेट, कि शायद पाकिस्तान तो अभी अभी इस्टेब्लिश हुआ था ना, ये एक नई कायम करदा रियासत थी, इसकी जगह अगर कोई वेल इस्टेब्लिश्ड कौम भी होती, वेल इस्टेब्लिश स्टेट, रियासत भी होती, तो शायद वो भी इतने बड़े प्रॉब्लम्स को फेस ना कर पाते. बट दोज ऑफ आवर एनिमीज़ हु हैड होप टू किल पाकिस्तान एट इट्स वेरी इंसेप्शन, कि हमारे वो दुश्मन जिन्होंने ये उम्मीद रखी हुई थी कि वो पाकिस्तान को इब्तदाई में, इंसेप्शन, व्हाट इज़ इंसेप्शन? द टर्म इंसेप्शन मीन्स बिगिनिंग, बर्थ, स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है बेटा, व्हाट इज इंसेप्शन? इब्तदा, स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग. कि पाकिस्तान के वो दुश्मन जिनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को इब्तदा ही में, उसके अभी अभी जो कि क़याम पजीर हुआ है, स्टार्ट ही से इसको नुकसान पहुंचाएंगे. इस तरह के जब मसाइल पैदा होंगे तो वो आगे मज़ीद अपने आप को नहीं लेकर चल सकेंगे. ये उनके इरादे थे. बाय दीज मीन्स, इस तरह के मुख्तलिफ हथकंडों को इस्तेमाल करके, ऐसे वेज़ और ऐसे सोर्सेज यूज़ करके वो पाकिस्तानी स्टेट और नेशन को कमज़ोर बनाना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. लेकिन क्या हुआ? वर्ल्ड डिसअपॉइंटेड, हमारे उन दुश्मनों को मायूसी का, नाउमीदी का सामना करना पड़ा. मीन्स they are failed in their wrong intentions.
Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, yes students, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी स्टेट गवर्नमेंट और रियासत ने ना सिर्फ इस upheaval, sudden disruption, what does the word upheaval means? Sudden disruption. जी बेटा, कि ये जो हलचल पेश हुई थी, इस हलचल से ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम ने इस सदमे को खुद से निकाला, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. जी बेटा, उन्होंने इस सदमे को बर्दाश्त भी किया और बल्कि उसके बाद emerged stronger, पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी नेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर, मजबूत होकर, ताकतवर बनकर सामने आए, उभरे. more chastened, yes students, chastened have a restraining or moderating effect on, means उनके अंदर और ज़्यादा मॉडरेट हो गए, बर्दाश्त और ज़्यादा उनकी बढ़ गई. एंड बेटर इक्विप्ड देन एवर, और पाकिस्तानी कौम पहले से भी ज़्यादा तैयार होकर सामने, मीन्स अब वो इन हालात को फेस करने के लिए नाउ दे आर फैमिलियर विद ऑल दीज डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज. नाउ दे कैन कोप विद ऑल सच problems. They are followed in rapid succession. Yes, students. Next paragraph, the last paragraph of page number 3. They are followed in rapid succession. Yes, students. Succession. What is succession? Following one after the other. What is succession? Following one after the other. Means आपने पिछले पैराग्राफ में ये पढ़ा कि किस तरह इंडियन नेशन ने, इंडियन डोमिनियन ने मुख्तलिफ मसाइल क्रिएट करने की कोशिश की और एनिमीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, किस तरह उन्होंने डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट वेज़ और मीन्स इस्तेमाल करके मसाइल पैदा करने की कोशिश की. अब उन्होंने क्या किया, यानी कि फ़ौरन ही इसके बाद अदर डिफ़िकल्टीज़ और मज़ीद मुश्किलात पैदा की, सच एज़ विद होल्डिंग बाय इंडिया ऑफ आवर कैश बैलेंसिंग. यस, कैश बैलेंसेस जो उनकी रकूम थी, बड़ी बड़ी रकूम पाकिस्तानी अवाम की, अब जब वो सेपरेशन हुई, पाकिस्तान सेपरेट हो गया, तो इंडिया ने वो रकूम देने से इनकार कर दिया. विद होल्डिंग, रिफ्यूज़ टू गिव, यानी देने से इनकार कर दिया. एंड ऑफ आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, और जो हमारे फौजी जो टूल्स थे, साजो सामान थे, उसमें जो हमारा हिस्सा था उसको भी देने से उन्होंने इनकार कर दिया. एंड लेटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेज ऑफ योर प्रोविंस. योर प्रोविंस, कायद-ए-आज़म यहाँ पर जिस शहर में यानी ढाका में ये कन्वोकेशन कर रहे हैं, तो ढाका की बात करें कि मुकम्मल तौर पर माशी लिहाज से नाकाबंदी कर दी गई थी शहर में. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings. Students, you have seen that what kind of difficulties and dangers still they are facing. And after facing such difficulties, Quaid-e-Azam is having optimistic approach. What he is saying कि मुझे अभी भी इसमें आई हैव नो डाउट, यानी मुझे कोई शुबा नहीं है कि सही सोच रखने वाले, पॉजिटिव सोच रखने वाले, मुस्बत सोच रखने वाले जो लोग हैं इंडियन यानी इंडियन डोमिनियन में, इंडिया में, इंडियन रियासत में, डिप्लोर दीज हैपनिंग्स, वो इस तरह के वाक़यात की नफ़ी करेंगे. दे आर ऑल्सो डिसअप्रूव्ड अगेंस्ट सच हैपनिंग्स, वो इन चीज़ों की फेवर में नहीं है. दे स्ट्रांगली डिसअप्रूव सच हैपनिंग्स. एंड आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज. व्हाट कायद-ए-आज़म हैड सेड कि मुझे पूरा यकीन है कि लोगों की वो जहनीत कि जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल हमारे लिए पेश आए, जिनके मसाइल ये जो सारे हमारे सामने आए, ये मसाइल क्रिएट करने वाले लोगों की वो जहनीत एक न एक दिन वो लोग, उनके माइंड्स, उनकी ये थिंकिंग ज़रूर चेंज होगी. बट इट इज़ एसेंशियल. नाउ व्हाट थिंग इज़ एसेंशियल? कायद-ए-आज़म इज स्ट्रेसिंग that you should take note of these developments.
Quaid-e-Azam is stressing on the importance of youth. Quaid-e-Azam is saying that you people should be aware about each and every change, each and every development. आपको इस सारी पेशरफ्त का जायज़ा लेना है. ये बात आप पर ज़रूरी है कि you should know each and every change. They stress the importance of continued vigilance on your part. Quaid-e-Azam is again saying that कि आपने विजिलेंट होना है, वॉचफुल, कड़ी नज़र रखनी है, निगरानी करनी है, केयरफुल, अलर्ट, अटेंटिव होना है. Your main occupation should be in fairness to yourself. Yes, Quaid-e-Azam has beautifully described that कि ये सब कुछ करने से पहले आपको अपने आप से मुखलिस होना है, फेयर होना है, ईमानतदार होना है. इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ मुखलिस होना है. एंड इंडीड इन फेयरनेस टू योर स्टेट, और डेफिनेटली अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, और फिर ओवरऑल आपने अपनी स्टेट, अपनी नेशन, अपनी गवर्नमेंट, अपनी कंट्री के साथ फेयर होना है, ऑनेस्ट होना है, ईमानतदार होना है. टू डिवोट योर अटेंशन solely to your studies. Yes, students. Now remember this thing, how much your studies is important. Quaid-e-Azam had delivered that address at that time when they are at the peak of difficulties, and still at that, you can say, the tough time, in that tough crisis moment, Quaid-e-Azam is still stressing the students to give importance to their studies. Same is the case with you people, students, as you are also facing a tough time. It's almost over, but still that is not ending. So आपने भी इस टाइम को बेटा वेस्ट नहीं करना. बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका ये टाइम पीरियड. अपनी स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को डिवोट कर दें अपनी स्टडीज़ के लिए. इट इज़ द foremost duty of a student, responsibility of a student. सो Quaid-e-Azam had said कि आपने अपने आप को डिवोट कर देना है, मुख्तस कर देना है, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए आपने डिवोट करना है. It is only thus that you can equip yourself for the battle of life that lies ahead of you. सिर्फ और सिर्फ जब आप अपनी स्टडीज़ में परफेक्ट होंगे, अपनी स्टडीज़ कम्प्लीटली होली एंड सोली परफॉर्म कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे, उसके बाद ही आप अपने आप को इक्विप्ड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, कि आप अपने आप को तैयार कर सकेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी की जंग को लड़ सकें. दैट लाइज अहेड ऑफ यू, जो कि आपके सामने मौजूद है. ठीक है बेटा. ओनली दस विल यू बी एन सेट and a source of strength and of pride to your state. जी, पेज नंबर 4, फर्स्ट लाइन, कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरह आप एसेट क्या है बेटा? सरमाया. कोई इम्पोर्टेंट एसेट, आपके कोई विरसा, कोई सरमाया, कि आप अपनी मुल्क का सरमाया कैसे बन सकते हैं? आफ्टर गेटिंग एजुकेशन. एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्राइड टू योर स्टेट. और ना सिर्फ एक सरमाया, कीमती सरमाया आप बनेंगे अपनी मुल्क, अपनी कौम के लिए, बल्कि ताकत का ज़रिया और फ़ख्र का ज़रिया बनेंगे अपनी रियासत के लिए. ओनली दस कैन यू असिस्ट इट इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम्स. और सिर्फ इसी वजह से आप असिस्ट टू हेल्प आउट, मदद कर सकेंगे, सपोर्ट कर सकेंगे इन बड़े माशी और माशरती जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, समाजी, सोशल, समाजी, इकनॉमिक जो माशी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से आप हेल्प आउट कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे. दैट कन्फ्रंटेड, जिनका सामना इस वक्त में हमारी रियासत को दरपेश है, जिनका सामना करना पड़ रहा है हमारे मुल्क को. एंड इनेबल इट टू रीच इट्स डेस्टिनीड गोल अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. और इसी के इवज़, यानी ये सब कुछ जब आप कर लोगे, उसके बाद हमारा ये मुल्क, हमारी ये स्टेट, हमारी ये नेशन, हमारा पाकिस्तान जो है, वो मंजिल मकसूद, जो हमारी डेस्टिनीड गोल है. व्हाट इज़ द गोल? व्हाट वाज द गोल ऑफ Quaid-e-Azam? दैट पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड.
और यही गोल अचीव करने के लिए कायद-ए-आज़म ने यूथ को स्ट्रेस किया, उनको एम्फसाइज़ किया कि आपने डिटर्मिन होना है, अपनी एजुकेशन के लिए ख़ुद को डिवोट करना है और इसी तरह से इस मुल्क को अपना वो गोल अचीव करने में आप हेल्प आउट कर सकते हैं। द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन के एक दिन पाकिस्तान इस गोल को हासिल कर लेगा कि वह दुनिया का सबसे मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। The next paragraph, my young friends, now Quaid-e-Azam is addressing the youth, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Yes, पहले बेटा कायद-ए-आज़म ने लास्ट पैराग्राफ में आपको एक्सटर्नल वे में किस तरह आपने विजिलेंट रहना है, वॉचफुल और किस तरह के मसाइल दरपेश हुए। अब कायद-ए-आज़म कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे की फैक्ट्स और आपको नुकात बयान कर रहे हैं कि जिनके लिहाज से, जिनको देखते हुए आपने ख़ुद को वॉचफुल, विजिलेंट, मुहतात रखना है, ख्याल करना है, केयरफुल होना है। फर्स्टली 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं। फर्स्टली बी अवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट। Fifth columnist. Who are the fifth columnist? A group within a country working for enemies. बेटा आपने सुना तो होगा कि आपके अंदर ही कुछ ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल अगर आप लोअर लेवल पे देखो, आपके इर्द गिर्द मौजूद आपके इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके अगेंस्ट, बेशक वो आपको अपरेंट आपकी फेवर में लग रहे होते हैं, लेकिन इनवर्डली दे आर फ्रेमिंग अगेंस्ट यू, दे आर प्लानिंग अगेंस्ट यू, दे आर नॉट हैप्पी विद योर सक्सेस, प्रोग्रेस। सेम इज़ द केस, ये जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट हैं बेटा, ये ऐसा ग्रुप होता है जो आपके ही नेशन में, आपकी ही स्टेट में मौजूद होते हुए आपके अगेंस्ट हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट हैं, जो वतन फरोश, ये जो डिसऑनेस्ट पीपल हैं, हमने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल कायद-ए-आज़म हैज़ एम्फसाइज्ड कि हमने ऐसे लोगों से मुहतात रहना है। Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. सेकेंड उन्होंने क्या हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कायद-ए-आज़म ने कि हमने मुहतात रहना है, गार्ड अगेंस्ट यानी हिफाजत करनी है अपनी, एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल, वीड आउट टू रिमूव, वीड आउट remove something unwanted, weed out, remove something unwanted। जैसे देखिए बेटा प्लांट्स में जो जड़ी बूटियाँ, जो घास फूस होता है, आप उसको रिमूव कर देते हो, तो उसके अननेसेसरी जो थिंग्स होती हैं उनको रिमूव कर देते हो। सेम इज़ द केस, वो जो लोग जो कि हमारे माशरे में अननेसेसरी हैं, जो कि हमारे लिए ट्रबलसम हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, इस तरह के सेल्फिश लोगों को जिनकी ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ हमें रॉन्ग यूज़ करना है, एक्सप्लॉइट, मेक यूज़ ऑफ, एक्सप्लॉइट, मेक यूज़ ऑफ एंड ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम एनी रिसोर्स और एनीथिंग एल्स, यानी वो आपका अननेसेसरी यूज़ जो वो करते हैं, आपने ऐसे लोगों से मुहतात रहना है, उनको पॉइंट आउट करना है, उनको जो रिमूव करना है अपनी सोसाइटी से। थर्डली, सो दैट दे मे स्विम, यानी वो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी जगह बना सकें, ताकि वो खुद सर्वाइव कर सकें, लेकिन आपने ऐसे लोगों से मुहतात होना है और उनको गलत इस्तेमाल यानी अपने लिए, यानी वो अपने कोई मुकाम, अपनी कोई जगह बना सकें, उनके लिए आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करना। थर्डली, लर्न टू जज हु आर रियली ट्रू एंड रियली ऑनेस्ट। देखिए फर्स्ट 2 पॉइंट्स में कायद-ए-आज़म ने पॉइंट आउट किया कि हमने सेल्फिश पीपल को और फिफ्थ कम्युनिस्ट जो आपके लोग हैं उन लोगों को हमने पॉइंट आउट करना है, उनसे होशियार रहना है, उनसे बच के रहना है। थर्ड पॉइंट में कायद-ए-आज़म इज़ ऑल्सो टेलिंग अस दैट वी हैव टू लर्न टू नो टू पॉइंट आउट अबाउट दोज पीपल। हमें इस तरह का तज्जिया रखना है, ऐसी नज़र रखनी है कि हम जज कर सकें किन लोगों को, who are really true, जो वाकई ही में फेयर हैं, ऑनेस्ट हैं, सच्चाई के रास्ते पे, एंड रियली ऑनेस्ट और वाकई ईमानदार हैं, एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, जो वाकई लॉयल हैं, फेयर हैं, ऑनेस्ट हैं और वो बिला किसी खुदगर्जी के बेलौस होकर, अनसेल्फिश होकर हमारी स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। Who wish to serve the people with heart and soul।
जो कि ये ख्वाहिश, ऐसे अनसेल्फिश पीपल जो कि ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो जितना मुमकिन हो सके अपनी आवाम को, अपनी कौम को, अपनी रियासत को, अपनी गवर्नमेंट को बाय हार्ट एंड सोल यानी दिलो जान से वो इनको हेल्प आउट कर सकें, इनकी मदद कर सकें, इनके लिए कोई काम आ सकें एंड सपोर्ट देम, और उनको मदद कर सकें, उनके लिए हेल्प आउट कर सकें. Yes, students, this is all for today's lecture. I think so these are the very simple points. First of all, at the start of today's lecture, Quaid-e-Azam has described in his convocation that youth should be aware of all the difficulties, whether we have faced some difficulties and dangers, but still there are some enemies who hope to destroy us, to weaken us. So we should have the clear, you can say that, knowledge about all these things, what had happened. And then Quaid-e-Azam has emphasized a lot on the importance of education. And then on the next page, Quaid-e-Azam has described the 3 important points through which we can judge the 5th columnist, selfish people who are there to use us wrongly, and the last point that Quaid-e-Azam has told us to know about, to judge about true and honest people. Yes, students, I hope so. Today's lecture is clear to all of you. If you face any problem, then discuss in the Q&A session with your relevant teachers. Till then, have a nice day. Allah Hafiz.